So friends, let's take started. First here mathematical logic this topic, and this lesson is also known as Boolean logic or the mathematical reasoning. Because first of all, think about the logic. What do you mean by logic? Actually, you are very aware about the logic, and logic is the words which is the Greek words that can be derived from the words logos, Logos, which means reason, means karan. Okay, now in order to solve exercise 1.1 we have to learn the some points. The first point, which is very important point, is the statement. Okay, now see the first statement. Actually, you know about the sentences. I'm not talking about the sentences because I'm come to the point. Simply see now statements, a declarative or assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously. As you can see on the screen, a declarative or assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously. कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट्स या तो assertive हो या declarative हो, वो स्टेटमेंट तभी हो सकता है जब वो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. लेट अस फिगर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सपोज एग्जांपल नंबर 1, अगर हम कहें 2 and 2 makes 4, 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो दिस इज एक्सेप्टेबल, इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, सो दिस इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट. It is declarative sentence or assertive sentence and it is true, so it is a statement. Next example, 2 and 2 does not make 4, 2 और 2 4 नहीं होते हैं. It is also assertive declarative sentence but it is false. This is why it is sentence. ये क्या है? false है. It is a statement. Okay, it is a statement. ये true था, it is a statement. Now next question number example 3 देखते हैं. Mumbai is the capital of Maharashtra, and you know Mumbai is the capital of Maharashtra. Everyone knows Mumbai is the capital of Maharashtra. It is assertive sentence and it is true, so this is why it is a statement. Next example, 2 is the only even prime number. Yes, 2 is the list of the prime number. 2 is the even prime number. दो प्राइम नंबर होता है और क्या क्या ये वो इवन होता है. तो इवन होता है, ये क्या है? ये सेंटेंस असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, और ये क्या है? ट्रू है. ये ट्रू है, इसलिए ये क्या है? स्टेटमेंट है. ओके, आई होप यू विल गेट. नाउ वन सेकेंड आई रिपीट, अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स. डैट मीन्स ऐसा सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, जिसको आसानी से आप बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना हो. जैसे एक और एग्जांपल, सपोज women are more intelligent than men. Suppose, have a look, women are more intelligent than men. अगर इस सेंटेंस को आप अगर गौर से देखेंगे, women are more intelligent than, कहने का मतलब औरतें जो हैं वो मेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो ये किसी लोकेलिटी के लिए ट्रू हो सकता है. ये आपके हिसाब से ये सही हो, या आपके मोहल्ले या आपके लोकेलिटी के हिसाब से ये सेंटेंस, ये असर्टिव ज़रूर है, ये सेंटेंस ये ट्रू हो सकता है. समटाइम्स हो सकता है कि सपोज़ इंडिया के लिए ट्रू हो, मे बी. सपोज़ अमेरिका के लिए रॉन्ग हो, मे बी हो सकता है. चूँकि डिपेंड्स करता है. वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन. That means there is a confusion, and that means there is confusion regarding this sentence, because sometimes women are more intelligent than men and sometimes men are more intelligent than men. So this is the ambiguity, this is the confusing regarding this sentence. तो ऐसे sentence वो consider नहीं किया जाएंगे मैथ्स में कि ये statement है. तो this is not the statement, but all the above sentences. 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये सबको जानता है, आप भी जानते हैं. एवरीथिंग यूनिवर्सल ट्रूथ है. यस, ये ट्रू है, दिस इज स्टेटमेंट. 2 और 2 4 नहीं होते हैं, ये फॉल्स है, इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट. क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है? ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू, या तो सिर्फ ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, यानी सही हो या फिर गलत हो, दोनों नहीं हो सकता. लेकिन इस केस में दोनों चीज़ें हैं, ये सही भी है और ये गलत भी है. कोई ज़रूरी नहीं कि वुमेन ही इंटेलिजेंट हो सकती है, मेन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं मे बी. सो ये दोनों एट ए टाइम है, सो दिस इज़ नॉट ए स्टेटमेंट.
अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सपोज दिल्ली इज़ वेरी फार फ्रॉम मुंबई, सपोज दिल्ली इज़ वेरी फार फ्रॉम टू मुंबई। अगर मुंबई अगर बोल दे इट इज़ अ स्टेटमेंट, बिकॉज यस ये सच है कि दिल्ली मुंबई से बहुत दूर है। लेकिन अगर सपोज अगर ऐसा बोले कि दिल्ली इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर का मतलब होता है कि हेयर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। हेयर मतलब हेयर डू नॉट इंडिकेट्स द पर्टिकुलर पॉइंट। हेयर मीन्स कन्फ्यूजन, हेयर मीन्स हेयर या हेयर या हेयर या हेयर। डेट मीन्स सपोज ये दिल्ली होता, हैव अ लुक, सपोज ये दिल्ली है और मैं बोल दूँ दिल्ली इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम हेयर मे बी हेयर मे बी हेयर मे बी हेयर मे बी हेयर, कहीं भी हो सकता है। मीन्स इसके रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूजन, मे बी हेयर, तो देर इज कन्फ्यूजन। ओके, sentences having confusion means ambiguity is not considered as statements in mathematics. I hope you will understood, and we will solve all the questions of exercise 1.1. Then you will very clear about the now see friends, the next point is the truth value of these statements. Truth value of statement, and you know the statement is either true or false. Now see, the truth value of the true statement is denoted by capital T. T stands for true, and the truth value of the false statement is denoted by capital F, because capital F for false. Okay, now let us see with the help of example. First, the sun rises in the east. Actually, you know, this is universal true, and this is declarative sentence. This is only true, so its truth value is capital T. Okay, now similarly next, the square of real numbers is negative. कह रहा है कि the square of real numbers का square negative है। रियल नंबर सब जानते हैं, either रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल को मिला के रियल नंबर्स। तो चाहे वो माइनस का स्क्वायर लीजिए तब भी क्या होगा, वो प्लस देगा, क्योंकि स्क्वायर गिव्स अस द पॉजिटिव साइंस। सपोज 2 का स्क्वायर is also positive. सुपर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ 2 टाइम्स। कहने का मतलब ये 1/4। डेट मीन्स कहने का मतलब है ये जो है स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट्स हैं? पहले तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और दूसरी और ये फॉल्स है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और ये फॉल्स है, सो इसलिए ये स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, मीन्स एफ है। आई होप यू विल गेट and you will solve the next questions and next topic. Okay, but some notes point friends, sentences which are exclamatory sentence, optative sentence or interrogative sentence are not considered as a statement in mathematics. means वैसा sentence जो questions कर रहा हो और वैसा sentence जिसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह से हो, जैसे प्लीज फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। इम्परेटिव सेंटेंस की अगर बात करूं, जिसमें सपोज फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट्स सिट डाउन, गो देयर, दिस आर ऑल द कमांड्स और रिक्वेस्ट और एनी टाइप ऑफ इमोशन लाइक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, या कोई सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहा हो या कमांड कर रहा हो, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन रेस कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे मैथमेटिक्स में। ओके, देखो इसके रीजंस हैं। जैसे सपोज मैं कहूँ मे आई कम इन, मे आई कम इन, दिस इज द परमिशन है, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसका मतलब दिस इज़ ये जो है किसी मोमेंट्स के लिए सही हो सकता है, किसी मोमेंट्स के लिए हो सकता है कि हाँ यस आ भी सकते नहीं भी, इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर। ये किसी उस आदमी पर डिपेंड करता है जिससे वो कह रहा है कि मे आई कम इन। ओके, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे सेंटेंस जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, जो स्टेटमेंट्स को पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूँ राम इज़ अ गुड बॉय, सपोज राम इज़ अ गुड बॉय, सपोज ये मेरे हिसाब से राम अच्छा लड़का हो सकता है, उससे आपके हिसाब से या अदर के हिसाब से राम इज़ नॉट गुड बॉय भी हो सकता। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, एम्बिग्यूटी है कुछ, तो ऐसे सेंटेंस को आप स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे। ओके, आई होप यू विल गेट। ओपन सेंटेंस फ्रेंड्स, ओपन सेंटेंसेस, ओपन सेंटेंस, a sentence is said to be an open sentence if the truth value can vary according to some conditions. Suppose अगर मैं कह दूँ x plus 4 is equal to 5, this is, have a look,
एंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन x, ये x पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड कर रहा। सपोज x इज इक्वल टू 1 देन इट इज ओके, इट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। बट सपोज x नॉट इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स बिकॉज x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ओनली दिस इक्वेशन इज गिवन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, लेकिन ये इसकी वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। आइदर x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो करेक्ट, बट x नॉट इक्वल टू 1 पे इनकरेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे दो केसेस, ये सही भी है ये गलत है, और ये डिपेंड्स कर रहा है x पे, यानी एक सिचुएशंस पे, एक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहते हैं। ओके, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ही इज एन एक्टर। सपोज ही इज एन एक्टर। अब देखिए एक्टर तो ही पे डिपेंड करता है ना, बट ये नहीं मालूम है ही कौन है। इट डिपेंड्स अपॉन ही, दैट मीन्स इट डिपेंडिंग, ही पे डिपेंड कर रहा है कि एक्टर कौन है। ही में भी कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ डिपेंड हो, जिस सिचुएशन पे डिपेंड करता हो, तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द ओपन sentences, and this type of sentences are not considered as statements in mathematics. Okay.